Fine students, today we are going to discuss Millikan's oil drop experiment, with the help of which we will be able to calculate the um, charge of the electron, and then we will be able to calculate the charge to mass with the help of charge to mass ratio, as we have calculated yesterday, means in the previous lecture. So with the help of that, we are having now charge to mass ratio. So from here we can get the mass easily. Okay, so charge on the electron. This is a very famous experiment done by Millikan's oil drop experiment. Actually, what he has done in this method, oil droplets in the form of mist, very small drops produced by an atomizer. Atomizer is a device which distributes, which you can say ejects the oil drops in the form of mist, were allowed to enter through a tiny hole in the upper plate of the electrical condenser. Yeah, the downward motion of these droplets was viewed through the telescope. Let me show you the diagram as well, so that you can easily understand the things at once only. See, this was the atomizer. With the help of this atomizer, they were throwing the oil drops in the form of mist. Okay, and under the gravity, these oil drops were falling. We were having two plates. Charged plate was there. This plate was charged positively, and this was the negatively charged plate. Fine. At the same time, we are having telescope also to observe the motion of the oil droplets. And yeah, these are X-rays from the source, X-ray source, right? So what Millikan has done, he was producing the oil droplets in a closed container in the form of mist. Okay, and these oil droplets were allowed to fall. Finally, यहाँ पर उसने पॉजिटिव प्लेट पर एक होल कर रखा था, एंड थ्रू दिस होल वेरी फ्यू ऑयल ड्रॉप्स, जिनको आप इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, विल फॉल डाउन. एंड हियर वन मिनट. Yeah, the downward motion of these droplets was viewed through the telescope equipped with the micrometer eyepiece, which allows you to see such small particles. By measuring the rate of fall of these droplets, by what rate these droplets are falling, Millikan was able to measure the mass of the oil drops, right? किस फोर्स से, किस रेट से, किस स्पीड से वो नीचे गिर रही हैं. with the help of that, by doing some calculations, he was able to calculate the mass of the oil droplets. Fine. Now the air inside the chamber was ionized by passing a beam of X-ray. मैंने अभी आपको चैम्बर दिखाया था, उसमें X-ray सोर्स लगा हुआ था. that rays, X-rays will ionize the gas inside the chamber, okay, inside the container. So एक्सरेज एक्चुअल में होता क्या है, हाई एनर्जी रेडिएशन होता है. सो जब ये किसी गैस से पास होंगे तो दे विल आयनाइज द गैस. ओके, वो उनके इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी दे देंगे, ड्यू टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स विल escape from the atom. As a result, gas particles will become the positively charged particles. So ionization is taking place. What is the need of ionization? We will soon see. Yeah. So X-ray की वजह से gases का ionization हो रहा है. The electrical charge on these oil droplets was acquired by collision with the gaseous ions. अब होगा क्या, ये oil drop नीचे आ रही है, वहीं पर बीच में कोई आयनाइज्ड गैस पार्टिकल आ जाएगा और उसमें ट्रैप हो जाएगा. जैसे ही आयनाइज्ड गैस पार्टिकल ट्रैप होगा, राइट, ये ऑयल ड्रॉपलेट एज अ चार्ज पार्टिकल काम करने लगेगा. फाइन.
और चार्ज पार्टिकल की तरह काम करने का मतलब कि ये इलेक्ट्रिक प्लेट्स जो लगा रखी हैं आपने, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स, उनसे अट्रैक्ट या रिपेल होना शुरू हो जाएगा. सो keep your attention here and let's continue this. The fall of these charged oil droplets can be retarded. इसको हम retard कर सकते हैं. We can accelerate it or we can made stationary depending upon the charge on the droplets and the polarity and the strength of the voltage applied on the plates. थोड़ा सा complex calculations of physics are here, right? आप आसानी से चार्ज पार्टिकल पर, कितने चार्ज पार्टिकल पर, यू विल स्टडी अबाउट दिस इन क्लास 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और उनका किस पार्टिकल पर कितना फोर्स होता है, राइट? सो उनको कैलकुलेट करके एक बैलेंस्ड स्टेट पे ला सकते हैं, या फिर हम इन ऑयल ड्रॉपलेट्स जिनके अंदर गैस चार्ज पार्टिकल्स यानी आयनाइज्ड गैस के पार्टिकल्स ट्रैप्ड हैं, उनको एक्सेलरेट कर सकते हैं या फिर रिटार्ड कर सकते हैं. क्लियर हो रही है बात? ओके. By carefully measuring the effect of electric field strength on the motion of oil droplets, अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना चेंज करने पर ऑयल ड्रॉपलेट्स के मोशन में कितना चेंज आ रहा है, रेट में क्या डिफरेंस आ रहा है, इन चीजों को इजीली कैलकुलेट करने पर मिल्टन ने ऑब्जर्व ये किया, मतलब ही वाज एबल टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन द पार्टिकल्स, चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट्स. ओके, एंड ही ऑब्जर्व्ड दैट द चार्ज वाज ईदर Q, I will give you the value of Q. It was either Q or simple whole number multiple of Q, right? What does it mean? It mean भाई इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था वो डिस्क्रीट था. डिस्क्रीट मतलब या तो आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे पार्टिकल से, या फिर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, या फिर 3 निकालेंगे. एट द सेम टाइम आप 1.5 इलेक्ट्रॉन या 2.5 इलेक्ट्रॉन मींस 1.5 और 2.5 इलेक्ट्रॉन्स you are not able to remove from the what? From the atom, right? Because electrons are the discrete particles and electron का charge भी discrete हो गया. Fine. This is called the theory of quantization of charge. Quantization का मतलब यही होता है कि कोई एक चीज फिक्स है, अब आप उसको उतना या फिर उसका सिंपल होल नंबर मल्टीपल ऐड या रिमूव कर सकते हैं. Fine. So he observed that the charge on the particles was either E or Ne. E was the charge of the particle, charge on one electron, or N is 1, 2, 3 or 4. Okay, I think Millikan का oil drop experiment आप लोगों को समझ में आ रहा है. As far as I can read your minds, okay, I know आपके अंदर curiosity है वो calculations भी जानने की. Fine, but leave something for the higher classes. Okay, आप एक बार 12th में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ लेंगे, उसके बाद ये कैलकुलेशंस आपको आसानी से समझ में आएंगे. एंड दिस इज आल्सो नॉट द पार्ट ऑफ आवर केमिस्ट्री कैलकुलेशंस, केमिस्ट्री स्टडीज एटलीस्ट अप टू दिस स्टैंडर्ड. ओके, सो in this way he was able to calculate the value of E, that is the charge of one electron. And what was that? This was 1.6 into 10 to the power minus 22, sorry, into 10 to the power minus 19 coulomb. 1.6 minus 1.602 into 10 to the power minus 19. For simple calculation, you can have the value minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay. और जैसे ही आप इसका वैल्यू चार्ज टू मास रेशियो जो पीछे थॉमसन ने कैलकुलेट करके रखा था, आप रखेंगे चार्ज का वैल्यू, चार्ज आपके कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल गेट द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज द मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन? 9.1094 into 10 with the power minus 31. Simply you can have 9.1 into 10 with the power minus 31. Okay, this was all about the discovery of electron, finding of the charge of electron and mass of electron. I hope it is clear to you. Now we will move to the discovery of proton and neutrons. Protons we have to discuss in detail. For neutrons, just a little discussion will be more than enough. So let's see protons, discovery of proton. या अभी तक हमने देखा
कि जब हम एक डिस्चार्ज गैस डिस्चार्ज ट्यूब से, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब से एनोड की तरफ परफोरेशन कर देते थे प्लेट में, मतलब एनोड की तरफ प्लेट को परफोरेटेड कर देते थे, उसमें होल्स कर देते थे, तो एनोड की प्लेट के पीछे फ्लोरेसेंट मटेरियल लगाने पर हमें साइंटाइलेशंस दिखते थे। ओके, प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने लिया होगा, तो यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दिस थिंग, राइट। अब क्या हुआ, साइंटिस्ट के दिमाग में आया, लेट्स चेंज द थिंग्स, एक बार हम कैथोड की तरफ परफोरेशन करके देखते हैं एंड लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट कम्स। Electrical discharge carried out in the modified cathode ray tube led to the discovery of particles carrying positive charge, also called canal rays। ध्यान रखेंगे, अभी हम ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम एनोड की तरफ, पीछे आपने देखा था एनोड में आपने होल किया और कैथोड की तरफ से आने वाले कुछ पार्टिकल्स थे जो एनोड के पीछे साइंटाइलेशन प्रोड्यूस कर रहे थे स्क्रीन पर फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाने के बाद, राइट। सो वो कैथोड की तरफ से आ रहे थे, इसलिए उनका नाम हमने कैथोड रेज रख दिया। ये एनोड की तरफ से आ रहे हैं, ये कह सकते हैं, राइट। या फिर सिंपल ये कह सकते हैं कि ये आपका व्हाट एनो कैथोड के पीछे, मतलब कैथोड की तरफ आ रहे हैं, राइट। सो ये कैथोड के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, इसकी तरफ अगर कोई आ रहा है, इट मींस द पार्टिकल मस्ट हैव और द थिंग मस्ट हैव पॉजिटिव चार्ज ओवर इट। तो इनको हम पॉजिटिव रेज भी कह सकते हैं, ओके, पॉजिटिव रेज भी कह सकते हैं, कैथोड रेज भी, सॉरी कैनाल रेज भी कह सकते हैं, ओके। और समटाइम्स एनोड रेज, हालांकि एनोड रेज इज नॉट अ गुड वर्ड, इट इज नॉट यूज्ड वेल, ओके। सो आप कैनाल रेज वर्ड यूज करें या फिर पॉजिटिव रेज वर्ड यूज करें, या so electrical discharge carried out in the modified cathode ray tube led to the discovery of particles carrying positive charge, also known as canal rays। The characteristic of these positive charges are listed here। आप लोगों को एक बार मैं फिर डायग्राम की हेल्प से समझा देता हूं, बिकॉज आई थिंक कुछ लोगों ने प्रीवियस लेक्चर छोड़ा है और वो नहीं समझ पा रहे होंगे। जस्ट अ मिनट। यस, अभी इन्होंने कुछ नहीं किया है, यहां पर आई थिंक आप लोगों को ये परफोरेटेड प्लेट दिख रहा होगा, एनोड की तरफ पर कैथोड प्लेट को भी परफोरेटेड ले लिया है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट इन वन पीस, परफोरेटेड ले लिया, जस्ट लाइक एनोड प्लेट, ओके। सो एनोड की तरफ आपको पता चलता है भाई, वी नो द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलाउज द फ्लो ऑफ करंट, राइट। तो यहाँ पर कैथोड रे मींस बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट होते थे और एनोड की तरफ एक्सेलरेट होकर के जाते थे, पीछे जाकर के साइंटाइलेशन प्रोड्यूस कर देते थे। दिस वाज ऑल अबाउट द कैथोड रेज। देन एनोड के पीछे, कैथोड के पीछे अगर हमने फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा रखा है और कैथोड रे को हमने परफोरेटेड कर दिया है, तो फिर यहां पर साइंटाइलेशन कौन प्रोड्यूस करेगा? क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव पार्टिकल तो फ्लो करते नहीं है, पॉजिटिव पार्टिकल जैसी चीज, राइट, फ्लो नहीं कर सकती है। तो यहां पर क्या फ्लो कर रहा है? कुछ तो पॉजिटिव फ्लो कर रहा है, अदरवाइज कैथोड के पीछे आपको साइंटाइलेशन देखने को नहीं मिलेंगे। सो उसके पीछे का फंडा ये है कि यहां पर हमारे पास लो प्रेशर में थे गैस पार्टिकल्स, ध्यान से समझिएगा, we were having gas particles at low pressure, fine। जब कैथोड की तरफ से इलेक्ट्रॉन बीम निकलेगा तो वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स किसी पार्टिकल से जाकर के टकराएंगे और जिस गैस पार्टिकल के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएंगे वो अपनी काइनेटिक एनर्जी उससे शेयर करेंगे और उस इलेक्ट्रॉन को निकाल के अपने साथ ले जाएंगे। आ रही है बात समझ में? सो दीज गैस पार्टिकल्स विल आल्सो आयनाइज, और जैसे ही ये गैस पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज के हो जाएंगे दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द कैथोड। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? फिर से समझिए, ये गैस पार्टिकल्स ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है, ओके।
इधर से एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन इस गैस पार्टिकल के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से हिट कर सकता है। अगर हिट करेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी शेयर करेगा एंड देन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल एस्केप द एटम। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा एनोड की तरफ एज द पार्ट ऑफ द कैथोड रेज, और जो गैस पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज का बन गया दैट विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड। आ रही है बात समझ में? और उन्हीं को हम बोलते हैं पॉजिटिव रेज। तो अब ये हमारे ब्रेन में आना चाहिए कि अगर आप लोग ठीक से रिकॉल कर पा रहे हो तो कैथोड रेज किसी भी गैस के केस में, आप कोई भी गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रखिए, कैथोड रेज की प्रॉपर्टी सेम आ रही थी। बट इन केस ऑफ कैनाल रेज, इन केस ऑफ पॉजिटिव रेज, अलग अलग गैस में अलग अलग प्रॉपर्टी वाली पार्टिकल्स आएंगे, अलग अलग प्रॉपर्टी वाली कैनाल रेज आएंगी। व्हाई? बिकॉज आपका गैसियस आयन चेंज हो रहा है। वहां पर क्या था? इलेक्ट्रॉन था, और इलेक्ट्रॉन सभी के लिए फंडामेंटल पार्टिकल है। क्लियर? सो लेट्स स्टडी द, नाउ आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Still, if you have doubt, you can ask me through comment section or through messages or through call, right? Depending upon the availability of the way what you are having. Yeah. Now we have to see the properties of canal rays. First, unlike cathode rays, the positively charged particles depend upon the nature of gas present. Just now I explained you this concept कि क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज वो गैस के पार्टिकल्स अलग अलग गैस के केस में आयंस बन रहे हैं, पॉजिटिव आयंस। तो अगर आपने हाइड्रोजन गैस ले रखी है तो H+ बनेगा, आपने हीलियम गैस ले रखी है तो He2+ या He+, दो इलेक्ट्रॉन ही सिंपली निकल जाते हैं, सो He2+ बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? And in both cases the charge to mass ratio will be different, or simply mass will also be different, charge is also different in some cases अगर +1 और +2 का फंडा है तो। Second, charge to mass ratio of particles is found to depend on gas from which these originate. Okay, charge to mass ratio depend कर रहा था अलग अलग गैस के ऊपर। Some of the positively charged particles carry a multiple of fundamental unit of electrical charge, right? मल्टीपल का मतलब फॉर एग्जांपल आपने हीलियम 2+ ले लिया, मतलब आपने हीलियम गैस ली थी, उसके बाद आपने कैथोड कैनाल रेज का चार्ज ऑब्जर्व किया तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर आएगा। आ रही है बात समझ में? जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है मैं बता दूं, दिस He2+ इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। ओके, जो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था दैट वाज नथिंग बट He2+ आयंस, fast moving He2+ ions. Some of the positively charged particles carry a multiple of fundamental unit of electrical charge. Okay, so इस तरीके से +1 हो सकता है, +2 हो सकता है। अलग अलग गैसेस को ऑब्जर्व किया गया। The behavior of these particles in the magnetic or electric field is opposite to the cathode rays. Cathode rays ऐसा बिहेव करते थे जैसे कि वो नेगेटिवली चार्ज हैं, और कैनाल रेज ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि वो पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो इन सब चीजों से हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट दीज आर नथिंग बट द गैसियस आयंस। ओके, एंड हाउ दिस इज लीडिंग टू द डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन, लेट्स सी। हमने अलग अलग गैस को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया और उनकी कैनाल रेज का नेचर ऑब्जर्व किया। हाइड्रोजन के केस में चार्ज टू मास रेशियो सबसे सिंपल आया, ओके, और वो स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट एटम था। तो हाइड्रोजन के केस में जो कैनाल रेज बने, जो कैनाल रेज के पार्टिकल्स थे, उन्हीं को हमने नेम प्रोटॉन दे दिया। द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयंस was obtained from hydrogen. Yeah, we know H+ is nothing but proton, right? हाइड्रोजन के एटम में 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन,
एंड सराउंडिंग में 1 इलेक्ट्रॉन होता है. If this electron will be escaped with the fast moving cathode ray electrons, right? So बचेगा क्या? Sorry, ये मैंने ड्यूटेरियम बना दिया है. In hydrogen we are not having neutron beta. Extremely sorry for this. ड्यूटेरियम बन गया था मुझसे. This is so just 1 proton 1 electron. This is hydrogen. Electron आपने निकाल दिया, so it is left with nothing but proton. Okay. So the smallest and lightest positive ion was obtained from hydrogen and was called proton. This positively charged particle was characterized in 1919. Later, a need was felt for the presence of electrically. अच्छा अभी क्या हो रहा है? हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. तो हमें चार्ज एटम के न्यूट्रल होने के पीछे का फंडा क्लियर हो गया. ओके, तो हम लोगों को जरूरत नहीं महसूस हो रही थी किसी और चीज को कैलकुलेट करने की. बट जब हमने मास के साथ इसको कंपेयर करना शुरू किया तो हमें पता चला कि भाई कुछ न्यूट्रल भी है एटम के अंदर. ओके, देन वी केम अबाउट द आइडिया ऑफ द न्यूट्रॉन. सो लेटर द नीड वाज फेल्ट. फ्रॉम हियर योर द स्टोरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इज बिगिनिंग. Although we need not to discuss in much detail, but a short discussion is required. Later, a need was felt for the presence of electrically neutral particles as one of the constituent of atom. These particles were discovered by Chadwick. Okay, proton की discovery अगर कोई आपसे पूछता है तो the answer is A. Goldstein. Okay, and neutron Chadwick, electron J.J. Thomson. These particles were discovered by Chadwick by bombarding a thin sheet of beryllium by alpha particles. Alpha particle is nothing but what? Right now I have told you. Yes, He2 plus. Okay. When electrically neutral particles having a mass slightly greater than that of protons was estimated, he named these particles as neutrons. Why? Because they were not having any charge. They were just neutral particles. Okay. Properties of these fundamental particles are given in table 2.1. Let's see that table as well. So this was all about the discovery of electron, proton and neutron. What we need to discuss. Let's see a brief tabular format collection of all what we have read till now. Just wait a minute. Yeah. Electron, symbol E. Absolute charge means actual charge on the electron. Minus 1.6022 into 10 to the power minus 19. And relative charge is compared, means relative means comparative charge between electron and proton. We will see it later. अभी देख रहे हैं proton के साथ. ठीक है. Mass of electron 9.10939 into 10 to the power minus 31 kg. In AMU, if we are going to write 0.00054 and mass to charge approximate mass by AMU, so almost zero. Means अगर हम AMU में approximate mass निकालें तो वो जीरो है. इसी वजह से किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एक्चुअल में होता क्या है, प्रोटॉन को हमने 1 मान लिया. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मासेस कंपेरेबल हैं, मींस दे आर स्लाइटली वेरी स्लाइटली डिफरेंट. ओके, सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास आप 1 मान लेंगे. 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, द सिंपलेस्ट वन, smallest one. And from if we are going to compare the electron, तो करीब 1830 to 1840 electrons somewhat are required to be equal to the mass of 1 proton, and the highest atom or the largest atom is having just 118 electrons. That is an anoctium, and it is an artificial atom. Okay, so means it doesn't make any sense if we are going to calculate the mass of the electron. Okay, there is slightly difference, so approximate उसको हम 0 मान लेते हैं. As far as proton is concerned, charge 1.6 in plus का similar होगा, means just sign is going to be changed. Plus 1.6022 into 10 to the power minus 19.
once again relative charge +1 and mass 1.67262 into 10 to the power -27. आप चाहें तो 1.67 तक याद रख सकते हैं. Mass in AMU 1.0700727 and approximate 1. Similarly, neutron charge 0 रहेगा, symbol m, relative charge 0 and mass 1.7. Now you can see the difference. Proton में 6.7 और neutron में 6.7 similar है. Just और power भी आप देखिए -27. So these are comparable. Means this much we can ignore. Okay. So इसको भी हम relatively 1 मान लेंगे. वैसे अगर डिटेल में देखें तो in AMU it is 1.00867 AMU. Fine. This was all about today. Tomorrow we will discuss about in the next lecture we will discuss about the atomic models. Okay. So as per your homework you have to go through the questions related to this as well as मैंने आपको पहले से परमिट कर रखा है. आप लेक्चर पढ़ने के बाद क्लास लेने के बाद NCERT एग्जाम्पलर करना कंपलसरी है. इसके अलावा आप किसी भी बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. यू आर फ्री. ओके. जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे द मोर रिजल्ट्स यू विल गेट. फाइन. थैंक यू क्लास.